Welcome back to the episode number 3 on menopausal at Healthy Fire Health Talk series. And today we are having an expert with us, dietitian Navdeep from Punjab. She's BSc MSc in Chemistry and Food and Nutrition. She's already doing and healing people from around more than 10 years now. And today we are going live with her on menopausal, how you can actually work and change and heal yourself during the menopausal stages. So welcome here, dietitian Navdeep. You a warm welcome. Thank you so much for sparing your time and joining us at Healthify. Thank you so much, dietitian Navdeep. And please introduce yourself to our audience, those who are listening to you. There are a number of patients, as well as there are a number of dietitians, those who really, they were eagerly waiting for you to go live on menopausal. Thank you so much, Pallavi ma'am. Thank you so much. Hello, everyone. Thank you so much for such a kind stage, such a good stage for me to explore my knowledge with you people. It's really a great thing, and I hope you people are taking care of your health. You all of you. Thank you, Healthify Group. Now, I'm working as an elite member of Healthify Group, and I have experience of 10 years and expert in female nutrition disease reversal. I've already cured number of females how to handle your lifestyles and how to handle your menopause and how to handle your daughters in their puberty period, right? So by changing just the lifestyle, I want you to take care of your health. अब being as a woman, being as a mother, मुझे खुद को ये फील हुआ कि नहीं हम कुछ चीजों में लैक कर रहे हैं. नो डाउट लिटरेसी रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा हम लोग समझ चुके हैं, यूट्यूब, गूगल, एवरीथिंग इज देयर. But still there is, you can say, a lack of knowledge in our houses, in our brains. You can say कि हम लोग इन चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं. हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट की जरूरत होती है. So here I'm going to share my knowledge on this topic. This is called menopause, how to handle this and how to enjoy this golden era of life. Actually, this is the golden era of life. It is not menopause. It means no pause. मतलब इस एज में हमें पॉज नहीं लगाना है. We must learn number of things, how to manage the things. So this is the menopause. It's a golden era. So thank you so much, Navdeep. Thank you so much. से आगे पहले हम आगे बढ़े, I would really like to that in which particular specialization you are currently working in. और ऐसा क्या इंस्पिरेशन हुई कि आपने उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट किया and you are doing wonderful things into that particular area? Especially I'm working on female nutrition disease reversal because female is like the pillar of family. It's like pillar of family. हम ये बोलते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि एक वुमन अगर लर्न कर, जैसे हम लोगों को चलता है, अगर एक लेडी पढ़ जाएगी ना, एक लड़की पढ़ जाएगी, उसकी फैमिली पढ़ती है. बट मैं अपने लोगों में ये बोलती हूँ कि अगर आपके घर की फीमेल को हेल्दी नॉलेज होगी ना, हाउ टू मैनेज डाइट, हाउ टू मैनेज लाइफस्टाइल, शी इज द ओनली पर्सन जो अपने इन लॉज का ध्यान रख पाएगी, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाएगी, अपने हस्बैंड का, खुद का, अपने किड्स का. मतलब पूरी की पूरी जनरेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है. बिकॉज किचन जो है वो एक फीमेल के हाथ में है. और मैंने यही नोट किया कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल मार्केट में हमें सुनने को मिल रही हैं, दैट आर ऑल बिकॉज ऑफ आवर किचन. यस, बिकॉज किचन जो हमारी फार्मेसी है ना, उसमें हमने कुकिंग स्किल्स बहुत गलत कर दिए. जो भी चीजें हमें सुनने को मिलती है, हम बिना जाने समझे उसके ऊपर, हम बिना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लिए या कुछ भी अपना माइंड ना लगाते हुए, अपनी समझ ना लगाते हुए उनको स्टार्टअप कर दिया. तो मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं फीमेल्स को ही गाइड करना स्टार्ट करूं, क्योंकि अगर मैं एक फीमेल को गाइड कर दूंगी तो मैं पूरी फैमिली को हेल्दी कर दूंगी. बिकॉज ये चीजें मैंने खुद अपने घर में ही मैंने देखी है कि क्या क्या चेंजेस करके, बीइंग एज अ मदर, आई एम गेटिंग फिट. नाउ आई एम मदर ऑफ 2 kids. तो मैं उन सब चीजों को मैनेज कर रही हूँ. मेरे खुद की जो बच्चे हैं, दे आर इनटू टीनेज, आई एम हैंडलिंग दैट पीपल. अपने हस्बैंड भी अगर मैं डाइट को देख रही हूँ, अगर मैं अपना पूरा फैमिली अपना देख रही हूँ, तो मुझे यही एक मेरा मोटिव लगा, मिशन लगा कि मैं अपने आप को हेल्दी करते करते मैं अपने नोन्स को भी हेल्दी करूँ. जो मेरी नॉलेज है सिर्फ मेरे तक ना रहे, हर किसी को एक्सप्लोर की जाए. थैंक यू सो मच नवदीप. तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. और thank you for coming and sparing your time today, and definitely our audience are going to benefit from this topic because what we circle generally is like number of dietitians, experts,
no matter if they are completed any kind of diploma or degree, there are some lackings of skills and knowledge where, we are only circulating, pre-customized diet plans and, giving foil papers or something like, focusing on refined oils and these parts. So आज का session, basically we are going to focus more on the menopausal part, that how being a female and in this particular stage जहाँ पे आज के time पे due to the poor lifestyle and lack of knowledge, people are even getting menopause at the age of 34. Past few months back, I came to know with a patient who was just 34, and she said, "Ma'am, already 2 years back, I had my menopause, and it was just about 32 years." So I don't think so that 32 years is, as a stage of menopausal. And where in our earlier time, our dadi and nani used to have even periods at 50s and 60s. People at this particular age, they are just, getting it done and off by 32 years of age. And you can imagine how, so imbalance is there in the hormonal body, so hormonal imbalance, and still we are focusing, okay, we are just here to make money, or we are just here to make things like done, and not focusing on the body that, we are carrying to do that particular work. So really, because I also have two daughters, and yes, it becomes a responsibility of wholesome of a mother. I totally agree with you. कि अगर मदर न्यूट्रिशनली एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं फैमिली, यस, इट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके घर में चीजें, आप एटलीस्ट अपने घर से चेंजेस स्टार्ट करो, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, राइट? तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक को लेके बहुत मतलब यूं कि लोगों को ये चीज समझ में आए कि इस स्टेज पे जहाँ पे लोग डरते हैं कि अरे पीरियड्स बंद हो गए, अब तो बॉडी फूल जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, उन मिथ्स को भी ब्रेक करें साथ साथ आज। प्लस ऐसे स्टेज पे जो चीजें बढ़ती हैं, जैसे कैंसर है, ये सारी चीजें हैं, उनको भी कैसे टैकल किया जा सकता है, उस पर भी आज हम लोग फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवदीप, थैंक यू सो मच। तो नवदीप, अपनी ऑडियंस के आगे हम लोग चलते हैं, इससे पहले कि उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि एक्चुअली में मेनोपॉजल है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज मेनोपॉजल, एंड क्यों फीमेल्स का इससे अवेयर होना बहुत बहुत जरूरी है। Absolutely right, Palvi ma'am, you are saying right कि menopause जो stage है वो 30s में आनी start होगी। Absolutely right. No doubt the expected age of menopause was, but it's much less expected कि 45 के बाद ही ये होनी चाहिए। But nowadays girls, ladies, they are getting their menopause at 30s. Reason उसका ये नहीं होता कि आज हुआ और आज ही हो गया, ये instant results नहीं है। कहीं ना कहीं इसके roots हमारे पीछे जुड़े हुए हैं, जो हम पहले भी कहते हैं ना, जो बीजेंगे वही पाएंगे, जो बोगे वही काटोगे, एग्जैक्टली वही हो रहा है। बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, दिस इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एग्जैक्टली बिकॉज हमारा खान पीन गलत है, हमारा सोने का उठने का टाइम गलत है, एंड सबसे बड़ा जो सिस्टम हमारे पास जो आजकल बहुत अच्छा गैजेट हर किसी के हाथ में देखा जाता है, मोबाइल, इट एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेनोपॉजल स्टेट, और यू कैन से इन योर हार्मोनल इम्बैलेंस। Actually, women's body is totally built up of number of hormones, not only women's, even men's also. But why we are particularly talking about women's? Because उसमें fluctuations ज़्यादा होती हैं. Because women have that authority, and that woman is blessed to have to give birth to the kids. So that's why every month hormone issues वहाँ पे रहते हैं. आप एक cycle चलता है. आप एक लास्ट टाइम जब पीडियाट्रिशियन तस्लीम मैम ने हमें बताया था कि एक मदर के वूम से एक फीटस निकलता है, दैट शुड बी हेल्दी। वो हेल्दी कब होगा? जब मदर हेल्दी ईटिंग करेगी। बट हमारे यहाँ पे मिथ्स क्या है? डबल खाओ। व्हाट डज इट मीन कि डबल खाओ? लोग इसका मिसकंसेप्शन क्या लेते हैं, डबल खाने का मतलब अगर एक रोटी खा रहे तो 2 रोटी खाओ। नो, इट इज नॉट राइट। इट मीन्स कि राइट क्वालिटी फूड खाना हमें बहुत जरूरी है। इट डजंट मीन कि अगर आपका मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, भेड़ चाल चलती जा रही है कि हमारा मन कर रहा है हमें मीठा खाना है, हमारा मन कर रहा है हमें नमकीन खाना है, तो आप जबरदस्ती वो चीजें खाए जा रहे हो। तो व्हाट डज इट मीन कि आपकी जो बॉडी है वो सारा अडल्टरेटिव फूड खा रहे हो, और जो एक नया फीटस आपसे एक जन्म लेना है, एक नई जिंदगी ने निकलना है, एक नए सीड ने निकलना है, उसकी रूट्स कैसी होंगी? डेफिनेटली जो आपने बोया होगा, जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, हेल्दी फ्रूट निकालने के लिए आप एक बीज को सींचते हो ना, अगर उसको हम अच्छे से नहीं सींचेंगे, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो वो प्लांट वो अच्छा फ्रूट नहीं देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मदर की जो एक बच्चे की हेल्थ होती है ना, उसकी मदर के साथ कनेक्टेड होती है। तो हम जेनेटिकली भी बात करते हैं
कि जेनेटिकली कनेक्टेड होता है, कुछ जेनेटिकली चीजें होती है, कुछ हम अपने आप उसको अडाप्ट कर लेते हैं। 6 मंथ्स तक जाते जाते बच्चों को फिर से वही चीजें सैरेलैक के ऊपर डाल दिया, डब्बे वाले दूध के ऊपर डाल दिया। 6 मंथ्स के बाद गए, फिर एक स्कूल गोइंग एज आई, वहां पे फिर चिप्स, चॉकलेट्स एंड चोकोस रेडी टू ईट, मेरा बच्चा कुछ खा के नहीं जा रहा है, तो रेडी टू ईट चोकोस आर ऑलवेज अवेलेबल देयर, रागी चोकोस आर देयर। इसमें इतना ज्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट स्टंट्स चलते हैं जो कि आपके बच्चे की वहीं से हेल्थ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हम जा रहे हैं मेनोपॉज में। तो यहाँ से अगर मैं स्किप करती हूँ टीनेज में, तो टीनेज में जाके फिर से वही चीजें, मेयोनेज है, केचप है, डोमिनोज पिज्जा, यू कैन, मतलब कोई भी ब्रांड का नाम लेते, पिज्जा है, नंबर ऑफ चीज, नंबर ऑफ एक्सप्लोरेशंस आर देयर। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं विद द गैजेट्स। उसके बाद जब आपकी आती है स्टेज मेनोपॉज की स्टेज, आजकल की डेट में मेरे पास जो केसेस आ चुके हैं वो 25 वाले भी आ चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन इसका यही है कि हमने अपने किचन को अच्छे से रेनोवेट नहीं किया, हमने बच्चों की ब्रेन में अवेयरनेस नहीं की। अगर मदर वो जो चीजें कर रही है, सेम चीजें बच्चा भी रिपीट करेगा। रेडी टू ईट चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। हॉर्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएशंस करते हैं, एंड एट द एज ऑफ मेनोपॉज वहां पे क्या होता है, आपका जो एस्ट्रोजन लेवल, हम आज की डेट में एज तो रही नहीं मेनोपॉज की, सिंपल सी बात है, जब आपका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करता है तभी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस आता है और आपको मेनोपॉज आता है। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों को जो सिम्टम्स आ रहे हैं मैम, लिटरली दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ मेनोपॉज। दे आर हैविंग सिवियर एंजाइटी इश्यूज, दे आर हैविंग सिवियर मूड स्विंग्स, hot flashes, number of things. The symptoms which you are going to get in your menopause, that symptoms are young ladies, they are getting in their early 30s or in 35, 34, or you can say in 40s. तो रीजन यही है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल पे काम नहीं किया, एक्सरसाइज के ऊपर हम नहीं फोकस करते। बीइंग एज अ इंडियन वुमेन, हम लोग अपने घरों में ही इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें एक सिंपल योगा करने का टाइम भी नहीं है, जो अगर हम 5-10 मिनट लगा के कर भी लें तो वो नहीं करते हैं। Okay. So this is lifestyle disorder. So as per you, who are actually on the higher risk of menopause? ऐसे कौन से लोग हैं जो ज्यादा higher risk पे हैं? People who are not focusing on your lifestyle, उनका सोने का उठने का टाइम सही नहीं है, उनका तब तक सोना, जब तक उनका मतलब उनको जब तक नींद नहीं आती तब तक वो लोग फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देती हूँ। इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। योर सर्कैडियन रिदम मींस कि आपके सोने का टाइम लेट और उठने का टाइम लेट हो चुका है। ऐसे पहले हम लोग क्या करते, सूरज उठने से पहले उठते थे और सूरज ढलने के बाद हम सो जाते थे, लेकिन आजकल क्या लोग कर रहे हैं, आज कहते हैं ना रात को दिन चढ़ता है, वो चीजें चल चुकी हैं। खाने का टाइम गलत है, कॉम्बिनेशंस गलत है, मार्केट का पैकेज्ड फूड बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक फूड बहुत यूज किया जा रहा है। जो भी पैकेज्ड जो अडल्टरेटेड फूड्स आ रहे हैं, जितना भी आप बाहर से खाना मंगवा रहे हो वो प्लास्टिक में आ रहा है, तो वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस आपका आ गया। नेक्स्ट, आपके किचन में एल्यूमिनियम फॉइल्स है, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, हम लोग उसको फेंकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब तो चीजें आ गई आपकी डाइट के साथ मैनेज करती है। दूसरा आ गया आपका वर्कआउट। वर्कआउट एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेनोपॉज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके मसल्स ड्रूप होने स्टार्ट होते हैं, आपकी बोन्स वीक होती हैं। क्यों बोला जाता है कि जैसे जैसे लेडीज 30+ करती है ना, उसकी हड्डियां ब्रिटल होनी स्टार्ट हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो गई। उनको ये बोला जाता है कि आपने डिलीवरी की ना 2 बच्चों की, इसलिए आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। नो डाउट, एक बच्चे की डिलीवरी के बाद 3 साल का कैल्शियम लॉस होता है, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स। तो इतने सारे मिथ्स है माइंड में, मतलब मैं अगर बोलने चलूंगी तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो मेरे जो हाई रिस्क के पीपल हैं वो यही है, जो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो वर्कआउट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ओवर थिंकिंग में ज्यादा जाते हैं, इंडल्ज रखते हैं अपने आप को, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंडल्ज रखते हैं। योर रील स्क्रॉलिंग एक्चुअली इंडल्ज यू वेरी मच इन योर दैट मोबाइल सिंपल स्मॉल गैजेट दैट एक्चुअली ruining your life. थैंक यू सो मच। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि फीमेल्स जो घर में है, जो हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, टाइम के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे मैनेज करें, लेकिन अभी करंटली जो हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हम पहले डायग्नोस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं? जो हम सिम्टम्स इसको डायग्नोस करते हैं, मैंने इसको छोटा सा एक नाम दिया है,
इसको नाम दिया है ढोल। ढोल नाम मीन्स B फॉर डायबिटीज, H फॉर हाइपरटेंशन, O फॉर सेंट्रल ओबेसिटी एंड L फॉर लिपिड। मतलब आपके ये 4 फैक्टर्स जो हैं, अगर ये डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो गए हैं, इट मीन्स यू आर नियर टू मेनोपॉज। मतलब आपको डायबिटीज नहीं था, लेकिन एकदम से आपके जो शुगर लेवल्स है वो फ्लक्चुएट करने स्टार्ट कर गई। आपकी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रक्चर, आपका वेट ठीक था, आपका वेट कभी बढ़ा नहीं या मेंटेन था, एकदम से आपकी सेंट्रल ओबेसिटी, आपके जो सेंट्रल स्टमक होता है उसमें ओबेसिटी दिखनी स्टार्ट हो गई, एंड आपका लिपिड प्रोफाइल फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो गए, एंड आपको बीपी के इश्यू स्टार्ट हो गए। तो ये तो हो गई लेबोरेटरी के बाद, ठीक है, कि हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं कि हाँ ये फ्लक्चुएशंस क्यों हुई हैं। तो माइंड में ये आता है कि शायद मेरी एज बढ़ रही है तब ये प्रॉब्लम्स आ रही है, बट रीजन इसके पीछे कुछ और है, बिकॉज आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, मेनोपॉज की स्टेज पास में आ रही है। मोस्ट जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स की बॉडी में, वो फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। जहां भी उसको प्रॉपरली फैट रखना है, जब जब एस्ट्रोजन ड्रॉप करेगा तो फैट जो है वो आपकी सेंट्रल बॉडी, आपके टमी एरिया पे फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली इन योर बैक। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लेडीज होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका टमी एरिया बढ़ता है, उनका बैक एरिया बढ़ता है, बाकी बॉडी ओवरऑल इवेंट पे ठीक होती है। तो वो एक सिम्टम है कि हाँ मेनोपॉज होने के चांसेस है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपके जो मेंसेस है, जो मंथली साइकिल है, या तो स्कैंटी होना स्टार्ट हो जाएगा या बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब कई लोग इसको मिथ क्रिएट कर देते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, जो मेरे पास केसेस आ रही है, वो मेनोपॉज नहीं हो सकता, तो वहां पे उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया जाता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, ऑपरेशन नहीं अभी करवाना चाहिए, बिकॉज मेंसेस बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म है। मेंसेस बंद होने का मतलब यही है कि सिर्फ एक मतलब है कि आप माँ नहीं बन सकते हो, अदरवाइज योर लाइफ इज नॉर्मल। अगर हम देखा जाए कि स्टार्टिंग में जब आपके मेंसेस स्टार्ट होने थे, तो 2-3 साल पहले ही आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे। जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं वो जानना शुरू करते हैं कि हाँ भाई अब बच्चे की बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, सो इट्स नियर टाइम कि उसको प्यूबर्टी पीरियड आने वाला है। इसी तरीके से जब आपके मेंसेस बंद होने होते हैं, जो कि मेनोपॉज का टाइम होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी सिम्टम्स देती है। अब जो सिम्टम्स और क्या देती है जिससे आपको लगता है कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए, वो सिम्टम्स होते हैं आपके स्किन पे यहाँ पे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, या आपके यहाँ पे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, माउथ के डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी, नेक पे ब्लैक पैचेस आ जाएंगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, जब भी मेंसेस आने होंगे आपके स्टमक पे दर्द होगा, आपके ब्रेस्ट एरिया बहुत ज्यादा हैवी टेंडरनेस फील होगी, एंड इसके अलावा आपको चिड़चिड़ापन बहुत होगा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों को हम लेके चलेंगे कि काइंड ऑफ ये चीजें हो सकती है, शायद एज के अकॉर्डिंग आपका मेनोपॉज होने वाला है। आपको क्रेविंग्स बहुत होगी, और एक और चीज, जब क्रेविंग्स होती है, हम लोग वही एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि अच्छा अभी हमें क्रेविंग्स हो रही है, हम मीठा खाएंगे, हम फास्ट फूड ऑर्डर करेंगे, तब अपने माइंड को थोड़ा नॉक करना पड़ता है, बिकॉज ये ब्रेन ना जो है हमें भगवान ने ऊपर दिया है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं। हमें इसको तब नॉक करना है जब ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको नॉक करना है कि नॉक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, डाउन टूवर्ड्स। तो आपको जगाना है अपनी बॉडी को, अपनी हॉर्मोन्स को, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो जगाता है, वो सिखाता है उसको। आपने चैनलाइज करना है कि गो फॉर द हेल्दी डाइट rather than going for that pizza and burgers and that sweet sugary things। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हमने सिम्टम्स के ऊपर बात करी, तो सिम्टम्स के साथ साथ क्या चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज सिम्टम्स के बाद अब बात करते हैं इनको इम्प्रूव करने, तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि इस स्टेज पे आने से पहले अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर कोई स्टेज में है करंटली तो वो इस पर्टिकुलर चीजों को अप्लाई करके अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हम रिकमेंड करेंगे? लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मेडिटेशन। अब मेडिटेशन मीन्स कि अपने आप को कंट्रोल करना। हम लोग इस स्टेज पे जाके हम लोग चाहते हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों पे, वो कहते हैं ना कि लगाम डालनी होती है, वो चीज डालनी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, अपने लिए टाइम निकालो, जो टाइम आप खुश होते हो उसमें सिर्फ हेल्दी चीज, मतलब एक नहीं भी दिल कर रहा ना, हमें पता है कि आपका दिल नहीं करेगा, ये स्टेज ही ऐसी है, नहीं दिल करेगा, कहने को हर कोई कहेगा वर्कआउट करो डाइट करो, वर्कआउट करो डाइट करो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपका मन करेगा छोड़ हम कल करेंगे, कौन क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली माइंड में चीजें आती है। बट ट्रस्ट मी 21 डेज अगर आप इसको सीरियसली करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को यूज टू हो जाएंगे।
आप सिंपल योगा तो कर सकते हो, अब योगा करने का टाइम भी नहीं है तो सिंपल ब्रीदिंग तो कर सकते हो। जब भी लगे कि एंजाइटी इश्यूज आ रही है, घबराहट हो रही है, आराम से बैठ जाओ, ब्रीदिंग करनी स्टार्ट करो। जब आप ब्रीदिंग करनी स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, वो जब अप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलेगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स इंप्रूव होंगे, तो आप अपने आप खुश हो जाओगे। आज के दिन में क्या हो रहा है कि हम अपने हैप्पी हार्मोन्स को फीड ही नहीं कर रहे हैं, या तो उसको ओवर फीड कर रहे हैं या उसको फीड ही नहीं कर रहे। लास्ट पहले हमें क्या होता था, हमारे पास इन्वर्टर्स नहीं होते थे, फुल टाइम एनर्जी ये लाइट नहीं होती थी, और आज के टाइम में क्या है, हमारे पास मोबाइल फुल टाइम रहते हैं। अगर जरा सा बोर हुए नहीं और हमने मोबाइल को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, हम अपने ब्रेन को ब्रेक नहीं देते हैं, उसको हर टाइम चार्ज अप रखते हैं मूड को स्विंग करने के लिए। अब एक रील देखी अच्छा लगा, दूसरी रील देखी अच्छा लगा, तो वो मूड्स ना उसी फ्लो में रहते हैं, लेकिन जब एकदम से बंद होता है वो ड्रॉप करते हैं, वो बैलेंस में नहीं रहते, या तो मूड यहाँ होगा या मूड बिल्कुल डाउन होगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक ऐसा टाइम जिसमें कोई गैजेट आपके पास ना हो, आपको वो टाइम निकालना है, उससे मेडिटेट करना है। ब्रीदिंग तो आप कर सकते हो ना, वो ब्रीदिंग करनी है। दूसरा आसन जो आप कर सकते हो दैट इज द बटरफ्लाई आसन। आप आराम से बैठो, आपने बटरफ्लाई आसन करना है, ठीक है। वो करना आसान है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। जिसको घुटनों की इश्यूज है उसके लिए आप आलती पालती मार के बैठ के आराम से अपना अपना ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भगवान के साथ ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, उसके साथ बहुत चीजें इंप्रूव करती हैं। बिकॉज मैं अभी ब्रेन की बात कर रही हूँ, ये चीजें ब्रेन से ही स्टार्ट होंगी। इसके बाद जो है आपका वर्कआउट आ गया। वर्कआउट हम योगा में ही इंक्लूड करते हैं। हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट कीजिए, अपने शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग हो गई, अपनी आर्म्स की स्ट्रेचिंग। बिकॉज जब भी मेनोपॉज आना स्टार्ट होता है या एज बढ़ती है, आपकी जो आर्म्स होती है, इसका जो फैट होता है वो लटकना स्टार्ट हो जाता है, आपके थाइस के ऊपर फैट आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ के मसल्स लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड थाइस के मसल्स आपके फैटनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो जरा जरा से आसन है, जैसे स्क्वाट्स कर दिए, पानी पीना है तो आपने मल आसन में बैठ के पानी पीना है, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ठीक रहेगा। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल हम चेंजेस कर सकते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ हेल्दी फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्यूज्ड वाटर इंक्लूड कर ले। वाटर का इंटेक तो डेफिनेटली हमें बढ़ाना ही है। इन्फ्यूज्ड वाटर में जैसे कभी हम लेमन का स्लाइस काट के डाल दिया, तो लेमन का स्लाइस काट के हम वो पानी पी सकते हैं। रात को पानी कॉपर के बर्तन में रख के हम सो सकते हैं, और एक ही बार उसको पीना है, पूरा दिन नहीं पीना। ये बहुत मिथ है, लोग सारा सारा दिन पीते हैं। अच्छा, जनरली जैसे कॉपर की बात हुई यहाँ पे, जनरली काफी लोग ऐसे होते हैं जो जग पूरा भर के रख लेते हैं, पूरा दिन उसका पानी पीते हैं, उसमें क्या टेक है? मैं वही बात कर लगी, बिकॉज हर चीज की ना एक लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड होल ऑफ द डे। वो दिन में एक ही बार कंज्यूम करना है, वो मॉर्निंग उठ के आपने एक दो जो ग्लास पी लिए, दैट्स इट। अदरवाइज हमें इतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए कि सारा दिन आप कॉपर कॉपर करते रहे। हम इवन फिल्टर्स तक कॉपर के आ गए हैं। मतलब देखो ना, एडवर्टाइजमेंट स्टंट्स कैसे चलने स्टार्ट हो गए कि लोगों को जिस चीज की नीड है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, पैसा बनना स्टार्ट हो गया। कॉपर के फिल्टर्स आ गए, कॉपर की बॉटल्स आ गई, लोगों ने कॉपर की बॉटल्स कैरी करने स्टार्ट कर दी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, जहाँ पे अगर स्टार्ट हुई है ये बात, तो कॉपर के अंदर हम पानी रख रहे हैं, उसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। उसके अंदर ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, अगर वो चीज हम नहीं क्लीन अप करते तो हमको हेल्थ बेनिफिट देने की बजाय उसका डिसबेनिफिट देना, बहुत नुकसान होता है उसका। तो वो वन टाइम कंज्यूम करने इज मोर देन इनफ। एक टाइम कंज्यूम करो बहुत है, क्योंकि मिनरल है ना, आपकी बॉडी में मिनरल चाहिए, माइक्रो में आता है, वो उतना ही चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है, वो पूरा हो जाता है। अच्छा, तो इसके साथ साथ जैसे कि हम बात करें, अगर लाइफस्टाइल में तो हम बात कर ही रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, फीमेल्स जिनका वर्किंग आवर्स है, या जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि नाइट शिफ्ट होती है कि कईयों, व्हेन वी हैव डाइटिशियंस एंड इवन हॉस्पिटल्स, उनके भी खुद की बॉडी का हार्मोन बैलेंस नहीं होते। वी हैव नर्स, वी हैव मेनी पीपल दोज हु आर वर्किंग इन इवन नाइट शिफ्ट्स। तो वहां पे सर्कैडियन रिदम को कैसे बैलेंस करें, या वहां पे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हार्मोन्स भी बैलेंस रहे? इन केसेस में भी हमारा क्या काम रहता है कि अगर हम अपनी डाइट हेल्दी कर देंगे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं एक ये जरूर बोलती हूँ कि कुछ तो बेटर करेंगे तो हमारी बॉडी सही रहेगी। अगर सब कुछ ही गलत कर देंगे तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी? कुछ नहीं करेगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग मीन्स कि अगर आप अपने जो ईटिंग हैबिट्स है उनको चेंज करो। सैलेड का इंटेक दिन में 2 बार जरूरी है, फ्रूट्स का इंटेक दिन में 1 बार जरूरी है, पानी का इंटेक की हम बात कर चुके हैं कि वो जरूरी है। इसके अलावा आप अपने आटे को स्विच कर सकते हो। आटा जो है आपका, वो सिंपल से अगर हम कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर देंगे, इतना इजी नहीं है शिफ्ट करना, लेकिन किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, वो आपकी हेल्प कर सकता है कि इसको कैसे स्विच करना है। प्लीज डोंट गो अलॉन्ग विद दिस यूट्यूब एंड गूगल्स।
वो आपको बहुत सारी मिसकंसेप्शन, बिकॉज शेफ्स हैं तो शेफ ने तो कुछ ना कुछ बनाना ही है, लेकिन वो किस कॉम्बिनेशन में, राइट कॉम्बिनेशन में आपकी बॉडी में जाना चाहिए, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकती है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने साथ वो चीजों को कैरी कर सकते हैं जो इजीली कंज्यूम होते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल का एक सिंबल है, उनके पास बहाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये इसमें श्योरली इसको बहाना ही कहूंगी। वी आर आल्सो वर्किंग, वी कैरी दैट मखाना 10, ठीक है, आप दोना भुना चना ले सकते हो। पहले जमाने में हमारे पास स्नैकिंग में सिस्टम में क्या होता था, मुरमुरा खा लिया, चना खा लिया। मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी नानी के घर जाती थी, वहां पे एक बुढ़ी आंटी बैठे थे, भट्टी लेके बैठे थे, तो वहां पे हमें स्नैक्स मिलते थे, भुने हुए पॉपकॉर्न्स हो गए, रेता में भुने हुए। और आज की डेट में जो भुने हुए पॉपकॉर्न्स मिल रहे हैं वो हमें माइक्रोवेव वाले मिल रहे हैं। अगेन दैट अगेन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हार्मोनल इम्बैलेंस एंड योर मेनोपॉज टू। इतनी चीजें हमने डाल दी अपनी लाइफस्टाइल में, तो डेफिनेटली मेनोपॉज तो नियर बाय आना ही था ना। हमने वो भी डाला है कि केमिकल वाली चीजें, पॉपकॉर्न अगर हमें खाना बोला है, स्नैकिंग अच्छी करनी है, हेल्दी करनी है, तो वो हमने पॉपकॉर्न ऑनलाइन खाना, वो माइक्रोवेव। आपने किचन की बात करी थी, तो किचन में बीइंग अ फीमेल, क्योंकि हम ऑब्वियसली फीमेल्स पे बात कर रहे हैं, तो यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे, काफी घरों में ये भी मैं देखा गया कि नहीं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में दूध उबालो, उसमें चाय बनाओ, अच्छी होती है। तो आपका क्या टेक है, क्या एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स किचन में होने चाहिए? ये बहुत बड़ा मिथ है कि एल्यूमिनियम एक चीप क्वालिटी प्रोडक्ट है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको मेंटेन करना इजी है। उसको जरा सा मुझे अभी तक याद है, मेरे घर में कोई रिलेटिव आया था कि हमने ना आलू उबाल रहे थे, तो वो मुझे कहते हैं कि इसमें ना हम ना नींबू डाल देंगे तो ये चमक जाएगा। तो मैं बचपन में, मुझे याद है, तो जब नींबू डाला तो वाकई में वो चमक गया, मैं खुश हो गई थी, ये तो बर्तन नया हो गया। तो वो चीजें हम देख के खुश होते हैं कि तो बर्तन साफ सुथरे लगते हैं। अब एल्यूमिनियम सबसे वर्स्ट चीज है आपकी किचन की, उसको किचन से निकालना बहुत जरूरी है। हंडोनियम में बोला गया था कि हंडोनियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो गुड होते हैं, लेकिन हंडोनियम बाय करना वो कॉस्टली है, ठीक है, इसलिए लोगों ने एल्यूमिनियम पे शिफ्ट कर दिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एल्यूमिनियम को स्विच करके आप स्टील पे शिफ्ट हो सकते हो। स्टील के यूटेंसिल्स मार्केट में बहुत आ चुके हैं। एल्यूमिनियम की जैसे भी आप उसमें कोई खट्टी चीज बनाते हो, वो स्क्रैच करते हो, तो वो लीच आउट होके आपके अंदर ही जाएगी। खट्टी इन द सेंस, आपने साग बनाया, उसमें विटामिन सी रिच है, जैसे विटामिन सी एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आएगा, वो रिएक्शन होगा, वो सारा क्लीन अप तो हो गया, आप खुश हो गए, बर्तन क्लीन हो गया, लेकिन वो किसको गंदा कर रहा है, आपकी बॉडी को गंदा कर रहा है इंटरनली। द वेरी कॉमन कॉज फॉर द कैंसर, फॉर द ओवेरियन कैंसर आल्सो। ओवेरियन कैंसर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ चुकी है लेडीज को, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस बहुत बढ़ चुकी हैं, ये सब किचन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये एल्यूमिनियम के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम मतलब मेनोपॉजल से कैसे कनेक्ट करें, मतलब इसका क्या लॉस एक तरह से मेनोपॉजल स्टेज को अफेक्ट कर रहा है लोगों के? मेनोपॉजल स्टेज जल्दी आ रही है इसके साथ, इसके साथ जल्दी आ रही है डेफिनेटली, बिकॉज एल्यूमिनियम की फॉइल भी हम यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, हमने एल्यूमिनियम के बर्तन यूज कर लिए, एल्यूमिनियम की फॉइल हमने यूज कर ली, हमने वो क्लिंग रैप्स करने स्टार्ट कर दिए, यूज करने स्टार्ट कर दिए। हमें नीट एंड क्लीन किचन चाहिए, हम क्लिंग रैप यूज कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कह लो कि लाइफस्टाइल चेंज, मतलब आप कह लो कि हाई सोसाइटी वाला शो करने के चक्कर में ना, हमने कोना, जो मम्मी हमारी रोटी किसमें देती थी, हम कोने में लपेट के रोटी लेके जाते थे, पहले एल्यूमिनियम फॉइल चलनी स्टार्ट हो गई, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं हम अमीरी शो करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल्स पे आ गए। तो वो अमीरी इतना मैटर नहीं करती, वो आपकी जो हेल्थ है ना उसको ग्रीव कर रही है। तो एक्चुअल में हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है इनके साथ। उसके साथ आपका माइक्रोवेव भी टच में आ रहा है, ठीक है, फिर आपके पास नॉनस्टिक भी किचन में होगा। चीलास बोले हैं न्यूट्रिशनिस्ट ने हमें खाने के लिए, ऑयल फ्री चीला, वी आर हैविंग ऑयल फ्री कुकिंग। बट व्हाट अबाउट द यूटेंसिल्स यू आर यूजिंग इन योर किचन, द नॉन स्टिक यू आर यूजिंग इन योर किचन, अगर उसके ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच लग जाए ना, जरा सा डॉट भी लग जाए, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है ना, तो वो डॉट भी लग जाए, आप लोग क्या कहते हैं, स्क्रैच लग गया, हाय मेरा इतना महंगा यूटेंसिल खराब हो गया, 2500 का एक फ्राई पैन आ रहा है, ठीक है, तो वो यूटेंसिल खराब हो गया, वो फॉरेन की टेक्निक है, वहां पे रिप्लेस करना इजी है। यहाँ इंडियंस जब तक वो घिस ना जाए हम उसको रिप्लेस नहीं करते, और तब तक उसकी सारी टेफ्लॉन कोटिंग जो है वो उतर के, जो उसके अंदर केमिकल डाला गया वो आपके अंदर जाता है, और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है। आपके बच्चों का प्यूबर्टी भी जल्दी आ रहा है ड्यू टू दिस नॉनस्टिक एंड ड्यू टू दिस यूटेंसिल्स। इवन एल्यूमिनियम की तो हमने बात करी, डाइटिशियन नवदीप, दीज डेज इन द किचन इवन फीमेल्स दे आर यूजिंग दीज नॉन स्टिक, डोसा बना रहे हैं नॉन स्टिक पे बना रहे हैं कि चिपके ना, जल्दी से बन जाए, जले ना।
तो उसमें क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं? क्या हमें वो नॉन स्टिक तवे भी स्विच करके आयरन कास्ट तवों पे जाना चाहिए? Yes, iron cast tawa is very good source, very good option for this your dosas and for your. मैं खुद इसको आयरन कास्ट मैं तवा यूज कर रही हूँ, उसमें कोई इतना घी नहीं लगता है, इवन आपके नॉनस्टिक पे भी घी लगता है, वो चिपकता है। वो एक मार्केट में बोल दिया कि मिथ है कि नहीं चिपकता, बट वो चिपकता है। मैंने जब कास्ट आयरन यूज किया तो वो एक ही बार घी लगाओगे, नेक्स्ट टाइम लगाओगे जरूरत ही नहीं पड़ती इसके लगाने की, वो चीला नहीं चिपकता। आप एक बार ट्राई तो करके देखो। कास्ट आयरन का जो तवा है या कढ़ाई है यूज करनी बहुत जरूरी है। जितने भी एनीमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हमारी कास्ट आयरन की जो कढ़ाई है वो एनीमिया को रिकवर करने में भी हेल्प करती है। वेरी गुड सोल। आप कास्ट आयरन भी शिफ्ट कर सकते हो, नॉनस्टिक को आप एल्यूमिनियम को शिफ्ट कर सकते हो स्टील पे, या आपके क्ले पॉट्स के ऊपर कर सकते हो। नो डाउट क्ले पॉट्स को मेंटेन करना मुश्किल है, आप स्टील यूज कर सकते हो। मेरे घर में खुद से मैंने 5 ईयर से उबाल हो चुका है, मैंने इन चीजों को रिप्लेस किया है और अभी तक मैं यूज कर रही हूँ। मेरी सब्जी नहीं जलती है, नहीं जल्दी। कभी आप चाहो तो मैं आपको डेमो भी दे सकती हूँ उन चीजों का। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब हमने काफी ज्यादा किचन पे एंड यूटेंसिल्स पे बात कर ली है, ऑब्वियसली ऐसा सिम्टम्स पे भी हमने अब तक बात कर ली है। अब ऐसे क्या फूड आइटम्स हम अपने मेनोपॉजल फीमेल्स लें ताकि उनके बॉडी में चेंजेस आए और एक हेल्दी बॉडी को वो लोग आगे कैरी कर सकें? तो ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो लेने बहुत जरूरी हैं ड्यूरिंग स्पेशली early menopausal, during the perimenopause and during the menopausal, and even जब menopause हो जाता है तो उसके बाद कैसे उसको कवर करा? जैसे कि मैंने बात की कि वन नाइट शॉट नहीं होता। वो कहते हैं ना कि एक दिन में घर नहीं बनता, ईंट ईंट जोड़ते हैं तो घर बनता है ना। पहले मकान बनता है फिर घर बनता है। इसी तरह से आपकी बॉडी भी जो है एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में ठीक नहीं होती। अगर कोई यंगस्टर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो आज से ही स्विच कर जाए। अगर कोई एज लेडी है जो मेनोपॉज के थ्रू निकल रही है वो आज से ही स्विच कर जाए, अपनी चीजों को चेंज करे। बिकॉज इन चीजों में अगर बचत करेंगे तो आपकी हेल्थ लॉस हो रही है। तो क्या चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो आपकी माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है उसके ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए आप अपनी डाइट में गुड फैट्स को इंक्लूड कर सकते हो, ओमेगा 3 को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। बिकॉज जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट भी वैसा है, हमारा खाना पीना भी वैसा है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो है ही। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आप स्टार्ट जब दिन कर रहे हो तो आपने ब्रीदिंग टेक्निक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। हम लोग अपने ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब भी आप बेड पे बैठे हो एटलीस्ट 2 मिनट्स तो निकालिए ना, थैंक यू गॉड तो बोल सकते हैं ना। एक्चुअली ये प्ले करता है बहुत अच्छा रोल। जब आपने ब्लेसिंग्स, अपने ग्रेटिट्यूड किया, उसके बाद आप ब्रीदिंग कर सकते हो। पहले 5 से स्टार्ट करो, 5 ब्रीदिंग्स की, फिर 10 की, फिर 11 की, ऐसे से उसको आप इंप्रूव करते जाओ। मैं अपने पेशेंट्स को स्पेशली सूर्य नमस्कार पे शिफ्ट करती हूँ। अगर उसके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बैक में कोई इश्यूज नहीं है, वो इजिली कर सकता है तो स्टार्ट डूइंग सूर्य नमस्कार। बिकॉज उसमें 12 आसन होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी पे वर्क करता है। आपकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ड्यूरिंग मेनोपॉज। उसमें स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है। वो स्ट्रेंथनिंग सूर्य नमस्कार में कवर होती है। आपके जो मसल्स होते हैं वो टाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप दिन में 5 सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, मोर देन इनफ। वो ज्यादा डिमांड नहीं करता। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमेशा इस चीज को याद रखना, कुछ ना कुछ तो करते रहो जो आपकी बॉडी को हेल्दी करे। इसके अलावा आपकी डाइट में कुछ नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करने बहुत जरूरी है। जैसे जिंक की प्रॉब्लम जो होती है वो डाउन होती है, वो कवर करनी जरूरी है। पानी के इंटेक की तो हमने बात की है। कैफीन का इंटेक कम करना है। बेकरी आइटम्स कम करनी है। जो चीज कम करनी है वो बता देती हूँ। रस आपके किचन में नहीं होना चाहिए। आपके किचन में ब्रेड का नाम नहीं हो जिसमें पाम ऑयल बहुत ज्यादा होता है। कहने को हमारे डाइटिशियन ने ब्रेड सैंडविच बोला है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। इट्स बेटर टू हैव बासी रोटी, एक दिन पुरानी रोटी आप खा सकते हो। इट्स गुड इनफ फॉर योर गट रादर देन हैविंग दैट ब्रेड इन योर डाइट। ठीक है, उसके अलावा आप अपना शुगर को स्विच करके आप शक्कर पे स्विच कर सकते हो। मीठा जो है, व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर, उसको बंद कीजिए। रिफाइंड ऑयल को स्विच करके अपने सीजनल ऑयल, जितना लोकल सीजनल फूड होगा ना, जितने भी डाइटिशियंस वो क्यों बदनाम हो रखे हैं न्यूट्रिशनिस्ट कि वो लोग ना हमें हाई फाई डाइट बताते हैं। इट्स रियली अ ग्रेट मिथ। हम लोग आपको ये गाइड करते हैं जो आपके दादी और नानी गाइड करते थे, जो आप नहीं सुनते थे। हमने आपको सीजनल फूड खाने के लिए कहा है। आपके फ्रूट, आपके सीजन में अगर वाटरमेलन चल रहा है तो हैव वाटरमेलन। अगर ये नहीं कि डाइटिशियन ने वाटरमेलन लिखा है, सर्दियों में वाटरमेलन खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एवोकाडो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, मेरी कोई बाइंग नहीं है उसके अंदर कि एवोकाडो डालना जरूरी है। गुड फैट ऐड करना है तो क्यों देसी घी बंद किया आपने? ऐड देसी घी इन योर डाइट, ऐड टर्मरिक इन योर डाइट, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, देसी घी। अच्छा खाओगे तो डेफिनेटली अच्छा रहोगे, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम मोटे हो जाएंगे, हमने देसी घी बंद कर दिया। गुड अच्छा, फैट जैसे कि अभी आपने ओमेगा की और उन सब चीजों की बात करी, गुड फैट के, तो ऐसे कौन से नट्स एंड सीड हैं जिनसे हम नेचुरली ओमेगा और हेल्दी फैट्स वगैरह ले सकते हैं? क्योंकि जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ऑडियंस सुन रही है वो स्विच कर जाएगी एकदम से सप्लीमेंटेशन पे। तो कौन से ऐसे नट्स एंड सीड्स हैं या हेल्दी फैट्स हैं, किन फूड सोर्सेज के थ्रू डाइट में जाने चाहिए? एक्चुअली ये है एक मिथ कि मेनोपॉज की पिल्स भी मार्केट में काफी ज्यादा आ चुकी हैं, एंड अगर फ्लो ज्यादा है तो पिल्स ले लो, फ्लो कम है तो आईपीएल ले लो, मतलब काफी चीजें, ये मिथ काफी ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि किसी भी सप्लीमेंट के ऊपर या पिल्स के ऊपर स्विच करने की जरूरत नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। नट्स एंड सीड्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन ऐड फ्लेक्स सीड्स इन योर डाइट, ठीक है। अगर वो गर्मियों में हम बात करते हैं कि गर्म करते हैं, तो आप उसको सॉफ्ट के साथ या किसी ठंडी चीज के साथ ले सकते हो, लस्सी में डाल के उसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हो, 1 स्पून आप उसको दही में डाल के ले सकते हो, तो इट्स गुड इनफ टू ऐड इन योर डाइट। आप फ्लेक्स सीड्स ऐड कर सकते हो, चिया सीड्स ऐड कर सकते हो, पंपकिन सीड्स आपके मैग्नीशियम की वीकनेस को कवर अप करता है काफी अच्छा, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बिकॉज देखो जितना भी हम बाहर का खाना खाएंगे, ओमेगा 6 लेवल्स हमारे बढ़ते हैं, हमें ओमेगा 3 बढ़ाना है, तो ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए आपको डाइट में वो चीजें इंक्लूड करनी है और बाहर का खाना बंद करना है, स्पेशली द चाइनीज फूड विच इज कंटेनिंग दैट अजीनोमोटो इन इट। एंड अजीनोमोटो जो है वो आपके ब्रेन के सेल्स को वीक करता है, और जैसे ही आपका ब्रेन का सेल वीक होगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली आएगा। मतलब कोई भी एक चीज को हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीजों को आपने मैनेज करना है। इसके अलावा कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा होता है, बोन ब्रिटल होती है ड्यूरिंग मेनोपॉज, उसके लिए आप अपनी डाइट में रागी को इंक्लूड कर सकते हो। अगर किसी को रागी सूट नहीं करती है तो आप उसको सेसमे सीड्स या रागी, आधा आटा आधा रागी भी आप यूज कर सकते हो, या कैल्शियम रिच फूड्स इंक्लूड कर, पालक में काफी अच्छा कैल्शियम होता है, वो आप चीजें इंक्लूड कर सकते हो। प्रोटीन का इंटेक, नो डाउट अगर बॉन्ड लॉस हो रहा है तो प्रोटीन लॉस भी होता है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना जरूरी है, स्ट्रेंथनिंग करनी जरूरी है। प्रोटीन के इंटेक में आप मोरिंगा ऐड ऑन कर सकते हो, मोरिंगा का जैसे आपने कोई सांबर बनाया तो मोरिंगा के स्टिक्स आप उसके अंदर ऐड करो। अगर कोई कहता है कि ठीक है हमें चीज महंगी नहीं चाहिए, फ्रांस बीन्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। आपकी सब्जियां जो है ना, सब्जी में प्रोटीन होता है, हम उसको यूज नहीं करते। नवरात्रों में आप लोग चुलई खाते हो ना, चुलई के लड्डू आते हैं, हम लोग उसको आगे पीछे क्यों नहीं खाते, सिर्फ सीजनली क्यों वहां पे क्यों खाते हैं? बिकॉज इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स एक्चुअली इक्वल टू एग, एक अंडे जितना प्रोटीन चुलई में होता है, तो कैल्शियम इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी वेजाइनल हेल्थ जो है, आपका यूट्रस, बेसिकली आप अगर देखो ना, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी यूट्रस की हेल्थ, की ओवरीज की हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना उसमें जो चीजें दी गई है वो हम अपने फूड से कवर कर सकते हैं। तो आपकी जो ओवरीज की हेल्थ है वो सीड्स के साथ हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीड साइक्लिंग। Pumpkin seed and flax seeds, they actually plays very important role for your ovary health, for your overall health. इसके अलावा आप विटामिन ई इंक्लूड फूड कर सकते हो, जैसे उसमें आमंड्स आ गए, ठीक है। हम लोग लेडीज का स्पेशली लोग होता है बाकी फैमिली खा ले, हमारा क्या है, वो चीज नहीं है। rather than to spend on your medicines, it's better to spend on the food. This is the right logo. अपनी मेडिसिन पे ना स्पेंड करते हुए अपने फूड पे स्पेंड करो, ताकि आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहो। बिकॉज अगर फैमिली की जो पिलर है ना वही बीमार हो जाएगी ना, तो पूरी फैमिली हिलती है उस टाइम, डिस्टर्बेंस। इसके अलावा कैसे, क्या फूड, मतलब जो क्या सब्जियां हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए डाइट्स में, क्या ग्रेन्स हैं जो डाइट में जाने चाहिए? सब्जियों की अगर बात करें, जैसे सीजनल है, मैं जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ से बिलोंग कर रही हूँ, तो चंडीगढ़ में अगर सीजनल सब्जियों की बात करते हैं तो घिया, तोरी, यहाँ पे पंपकिन है, ठीक है। बीटरूट आप ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आप से अब बीटरूट काफी ज्यादा सीजन में है तो बीटरूट ऐड हो सकता है, पंपकिन ऐड हो सकता है, ठीक है। एश गॉड ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, अगर एश गॉड नहीं तो आप घिया डाइट में ऐड करो, ठीक है। बीन्स हो गई, फिर आपका जो सैलेड है, अब सैलेड की बात की जाए तो हमें मॉडर्न सैलेड नहीं चाहिए, आप खीरा ही खा लेंगे, इट्स मोर देन इनफ। आपने एक डाइट से खाना से पहले खीरा खाया, और जब आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, उसके साथ अनियन काट के वो खा सकते हो, वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को कुकुम्बर सूट नहीं करता उनके लिए क्या ऑप्शन दे सकते हैं सैलड में?
सैलेड में अगर उनको कुकुम्बर सूट नहीं कर रहा तो वो ठीक है, सिर्फ अनियन ही खाएंगे। सूट कैसे नहीं कर रहा, अगर उनको गट इश्यूज है तो उनकी गट पे काम करना पड़ेगा, उनकी लाइनिंग पे काम करना है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होता कि सूट नहीं कर रही है तो उसको एकदम से बंद कर दो। वी नीड टू चेक कि प्रॉब्लम कहाँ पे, इट मीन्स कि फिर उसकी प्रॉब्लम कोई और है, तो हमें पहले उस प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा। अगर उसका लिवर लीकी है, सॉरी उसका गट लीकी है, तो लीकी गट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो सूट नहीं कर रहा तो सैलेड नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको रॉ वेजेस सूट नहीं कर रही है, ये अगर क्वेश्चन है, तो उस केस में उनको स्टीम वेजेस या सॉटेड वेजेस वो दे सकते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने एज कम्पेयर टू द रॉ वेजेस इक्वली गुड होती है, वो हम ऐड कर सकते हैं। कैप्सिकम्स ऐड कर सकते हो सॉटेड फॉर्म में। एंड ग्रेन्स की अगर बात की गई है, ग्रेन्स में मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हाँ, हम रागी, जवार, बाजरा चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज मिलेट ईयर चल रहा है 2023। बट वी नीड टू चेक कि बॉडी वो डाइजेस्ट करती है कि नहीं। अब कई लोगों को रागी सूट करती है, कई को रागी सूट नहीं करती है। अब जवार और बाजरा हम सूट कहीं को करता है, कहीं को नहीं करता, डिपेंड करता है बॉडी किस एक्सेप्टेंस मोड पे है। कभी भी एक डाइट प्लान दूसरे पर्सन को सूट नहीं करेगा, वो हमेशा कस्टमाइज्ड होता है। उसके पैरामीटर्स को चेक करने के बाद, उसकी एलर्जीज को चेक करने के बाद सब चीजें इंक्लूड की जाती है। ग्रेन्स में आप किनोवा ऐड कर सकते हो, एमरंथ जो हमारी चुनई है, स्टेपल फूड है, हम वो ऐड ऑन कर सकते हैं, रागी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप मिलेट्स में जो सिर्फ फॉक्सटेल मिलेट है, किसी को लिवर का इशू है, गैस्ट्रिक इशू है, फॉक्सटेल इज द बेस्ट मिलेट टू ऐड ऑन। स्टार्टिंग अगर करनी है आपने, उसको ऐड ऑन कीजिए। बट अगेन यहाँ पे क्लॉज है कि जो मिलेट्स हैं उनको यूज करने का तरीका आपको पता है, उसको कितनी देर सोकिंग करनी है। अगर उसकी सोकिंग गलत, उसको अच्छे तरीके से आप पकाओगे नहीं, बनाओगे नहीं, बनाने बहुत ईजी है। वन टाइम अगर आप सीख जाओ कि कैसे बनाना है, वो सीख जाएंगे, तो उसको बनाना बहुत ईजी है, जैसे आप राइस कुक करते हो। लेकिन उसके जो डूज एंड डोंट्स है वो आपको पता है, अदरवाइज वो उसके डिसएडवांटेजेस आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज, आप हल्दी, स्पाइसेस मैंने बात की थी, हल्दी काली मिर्च आपकी जो है, हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन वो ज्यादा अच्छा काम करता है। जब आप अपने लिवर को हील करना स्टार्ट करते हो, आपकी हार्मोनल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो ये सब चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजेश नवदीप। तो अगर अब हम बात करें तो जनरली अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया, ओके, लोग ज्यादातर इन सारी चीजों की, अगर मेनोपॉजल हो रहा है या सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च करते हैं, राइट? ये सबको पता है। बट as per your advice, what should be the very first step for any female in order to, bring any lifestyle change into the diet, into the body or, into the lifestyle? तो सबसे पहले किसको अप्रोच करना प्रायोरिटी पे जरूरी होता है? आपके क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है, मैं यहाँ सबके लिए गूगल बैठी हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे 12 साल का बच्चा सुन रहा है, मुझे नहीं पता मुझे 60 साल की लेडी सुन रही है, उसको क्या इश्यूज है, या 40 इयर्स की कोई लेडी सुन रही है, उसको क्या इश्यूज है। हो सकता है किसी को कोई सिम्टम्स है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको रागी, जवार, बाजरा खाना है, तो वो सबके लिए कॉमन हो गया। तो क्या वो हर किसी को सूट करेगा? नहीं करेगा। वो उसको सूट करेगा जिसके लिए वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर जो बैठे हैं, वो आपके सिम्टम्स को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे आपको डाइट प्लान बना के देते हैं कि भाई ये चीज आपके लिए ऑथेंटिक है, ये चीज आपके लिए कस्टमाइज्ड है, ये प्रॉपर्ली वर्क करेगी। अदरवाइज गूगल को तो नहीं पता ना कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। उसने तो कॉमन प्रॉब्लम जो थी, उसने एक देखा क्वेश्चन कौन सा सर्वे किया जा रहा है, उसके बेसिस पे उसने कॉमन सा आंसर देके दे दिया कि हाँ ये चीजें इंक्लूड कर दो। उसने बोल दिया गुड फैट इंक्लूड करो और फैट को एक्सक्लूड करो। और फैट को एक्सक्लूड करने के चक्कर में छोटी सी अगर टीनेजर लड़की सुन रही होगी कहेगी गूगल ने तो बोला कि फैट एक्सक्लूड करा, मम्मा देसी घी बंद, आज से देसी घी बंद। तो वो देसी घी बंद, गुड फैट तो वही बंद कर दिया। एवोकाडो खाना है हमें, फैमिली अगर खाना अफोर्ड कर पा रही है कि नहीं खा रही है, लेकिन आज के डेट में फॉरेन फ्रूट्स घर पे आ रहे हैं, एवोकाडो घर पे आ रहा है, हमें वो खाना है। तो गूगल की बात मानोगे तो फिर तो गूगल घुमाएगा ही। It's a basic, it's a basic part that we need to be connected with the roots. And जितना ज्यादा हम अपने रूट से कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा हम हमारी जो मील प्लान है, जो हमारी थाली है, वो सीजनल आइटम से रहेगी। क्योंकि मार्केट में तो देखो आज के टाइम पे हर आइटम मिलता है, देयर इज एवरीथिंग। फ्रूट्स आप पूरा सीजन देख लो, एप्पल आपको पूरे सीजन मिलेगा, आपको वाटरमेलन पूरे सीजन मिल जाएगा, तो दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड कि ये इस सीजन में आता है। और यही कारण है कि लोग कुछ भी कभी भी खा रहे हैं। और मैंगो लोगों ने खाना बंद कर दिया कि डायबिटीज है तो बंद कर दो आम खाना, कि हाई शुगर होता है, डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना चाहिए।
तो इतने ज्यादा मिथ्स मार्केट में हो चुके हैं, जो कोई मतलब इवन इन द व्हाट्सएप हैज सो मच सर्कुलेटेड द थिंग्स कि ओके ठीक है ये खा लो या ये काढ़ा पी लो. सो दिस इज समथिंग वेरी रियली आई टोटली एग्री विद यू डाइटिशियन नवदीप के आज के टाइम पे इवन इट्स फॉर एवरीबडी आउट देयर जो भी हमें सुन रहा है, it's more important that whatever symptoms you are having, even if you are having scanty of periods, or if you are having fibroids, if you are having any kind of pain, or if you are facing any kind of hormonal imbalance, so don't give them the name of anxiety and depression and something like that. Just connect with your doctor or connect with especially with your nutrition experts so that क्या right food combination है आपकी body के लिए needed वो आपके शरीर में जाए. क्योंकि दवाइयों के साथ साथ अगर आप खाना ठीक नहीं खा रहे तो दवाइयां भी नहीं काम करती. ये पूरा एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो चलता है. एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग वी हैव अ बैलेंस ऑफ डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स along with that to support you overall body, right? So definitely yes, and now it's time definitely before we proceed towards the queries and the Q&A part, I really wanted to ask one more thing कि जो भी हमारी ऑडियंस यहाँ पे सुन रही है, जैसे कि हमने काफी मिथ्स भी यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दी हैं तो मैं अलग से नहीं पूछूंगी, बट यहाँ पे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कैसे कि एक अवेयरनेस को हम ऐसे इसको स्प्रेड करें और कैसे हम इसको पूरे सेशन को क्विकली एक 1 मिनट समराइज कर सकते हैं. मैं चाहूंगी कि आप इसको पूरा एक 1 मिनट में समराइज करें ताकि जो लोग यहाँ पे हमें सुन रहे हैं समझ रहे हैं उनको एक क्लैरिटी मिल जाए. हो सकता है यहाँ पे किसी ने लेट ज्वाइन किया, किसी ने मिड में ज्वाइन किया, सो दे शुड हैव अ क्लैरिटी आल्सो. ओके, सो जस्ट समराइज इट विद इन अ 1 मिनट ऑफ टाइम पीरियड, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करें. श्योर मैम, एक चीज है, मेनोपॉज हम लोगों ने नाम दे दिया, मेनोपॉज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब हम लोगों ने नाम दिए हैं, बट बॉडी हमारी भगवान ने बनाई है, उसके लाइफ साइकिल जैसे भी चलना होगा वो चलेगा, लेकिन हमने जो उसके ऊपर अपना मिर्च मसाला डाल के उसकी डिश अलग रेडी कर दी है. उसको सेट करने का एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिंपल फंडा ये है कि ऐड एक्सरसाइज इन योर डाइट लाइफस्टाइल एंड अपना जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसको करना जरूरी है. अपने माइंड से आपको माइंडफुल ईटिंग करनी जरूरी है. जब भी खाना खाओ अपना बैठ के आराम से बिना मोबाइल बिना टीवी के देखो खाओ, उसको ग्रेटिट्यूड करके खाओ. वो ग्रेटिट्यूड करना हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, ठीक है. वो ग्रेटिट्यूड करके खाओ. सुबह उठ के ब्रीदिंग टेक्निक्स करो. रिलैक्स से खाना खाओगे तो डेफिनेटली वो खाना जाएगा अंदर आपके और वो आपको अंदर से भी रिलैक्स करेगा. कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे. तो अगर हम खाना खाते हुए भी रील्स देख रहे हैं तो वो सेम चीजें ही हमारे अंदर जा रही हैं और वो उथल पुथल कर रही है बॉडी में, तो वो अप एंड डाउन हो रखा है. तो दैट इज ऑल बिकॉज कि हम उसको माइंडफुली लेके चल रहे हैं. हम ठीक है, नाउ इज अ डे ऑफ यू कैन से कि ये सामान चल रहा है कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लेकिन हम सोशल मीडिया को ऑफ भी नहीं कर सकते, मैं वो नहीं कह रही. बट हर चीज एक टाइम रखो, डिसिप्लिन में रहेगा हर चीज तो डेफिनेटली आपकी बॉडी सही रिएक्ट करेगी, आपकी बॉडी भी डिसिप्लिन रहेगी. अगर आप इनडिसिप्लिन रहोगे तो आपकी बॉडी भी इनडिसिप्लिन ही बिहेव करेगी. तो इट्स सिंपली गिव एंड टेक. आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो वो आपको रिफ्लेक्ट करके दे रही है. सो एड प्रॉपर लाइफस्टाइल, उसमें आपका वर्कआउट, ब्रीदिंग टेक्निक. वर्कआउट में आप नहीं कुछ कर सकते हो, जस्ट डू वॉकिंग आफ्टर एवरी मील. हर मील के बाद आपको आधा घंटा चलना है, दैट्स इट. अदरवाइज आप सुबह अपने 5 सूर्य नमस्कार कर लिए, खाना खाने के बाद आपने अपने आधा घंटा वॉक कर ली. सिंपल वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है. अपनी डाइट को जब फोकस करना है तो माइंडफुल ईटिंग करनी है. अगर बाहर गए हैं तो ये नहीं कि पिज्जा मिल रहा है तो पिज्जा खा लो, गोलगप्पे मिल रहे तो गोलगप्पे खा लो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कभी दिल करे तो खाओ, बट माइंडफुल ईटिंग यही है कि वहां पे आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, वहां पे आपको जूसेस भी मिलते हैं, तो आपके पास कोकोनट वाटर की अवेलेबिलिटी भी है. अब वहां पे माइंडफुल ईटिंग एक और ध्यान कि अगर कोकोनट वाटर की बात की है तो कोकोनट वाटर रॉ वाला जो बॉटल में आता है वो वाला नहीं. यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना है. भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमारे रोबोट्स को दिमाग नहीं दिया है. जानवरों की कैटेगरी से हम अलग है, कुछ भी मिले वो नहीं खाएंगे. सोच समझ के खाना हमें बहुत जरूरी है, वो मैटर करता है. तो समराइज यही करूंगी, राइट फूड जो है आपकी डाइट में होना जरूरी है एंड स्लीप पैटर्न्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है. राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, और सोने से 2 घंटे पहले आपका फोन बंद. और दूसरी चीज एक और, आप जब सोएंगे आपका फोन
आपके रूम में नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जब सोते हो ना तो आपका ब्रेन सो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, लेकिन जो वेव्स है फोन की वो तो आपके ब्रेन में जा रही है ना, इंटरफेयर कर रही है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को खराब कर रही है, आपको अनईजी नींद आएगी, आपकी नींद का जो साइकिल है, आपको आजकल की डेट में नींद की मेडिसिन बहुत अर्ली स्टेज पे लगनी स्टार्ट हो गई। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन। अब कई लोग इसको जेनेटिक है, मेरी मम्मी मेडिसिन खाते थे इसलिए मुझे भी लग गई। दिमाग से ये सोचिए कि हमने किया क्या, व्हाट वी डिड विद आवर लाइफ, विद आवर बॉडी, हमने जो किया हम वो पाएंगे। थैंक यू सो मच नवदीप, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसको हम अब Q&A ले लेते हैं। लास्ट 5 minutes I'll take the queries. So if you have any queries, I would like to ask my audience, if you have any queries, you can just let me know in the comment box so that the dietitian can explain you. पेरीमेनोपॉजल पे और मेनोपॉजल पे क्या डिफरेंस है? एक लाइन में उन्नति इज आस्किंग फ्रॉम यू डाइटिशियन नवदीप। उन्नति पटेल का ये क्वेरी है कि प्लीज एक्सप्लेन वन स्मॉल लाइन डिफरेंस बिटवीन पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉज। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करें? पेरीमेनोपॉज हम कह सकते हैं कि आपके मेनोपॉज से पहले का टाइम, और मेनोपॉज है ड्यूरिंग मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में आपके काफी ज्यादा सिम्टम्स, आपको कई हो सकता है कि आपको वैसे ही एंजाइटी हो रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे मेनोपॉज हो गया है। सिम्टम्स 2-3 साल पहले आने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरीमेनोपॉज। एंड मेनोपॉज होता है जो लाइफस्टाइल एक्चुअल में जैसे 40+ है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि मेनोपॉज होगा, तो उसमें आप अपने अगर लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे, नो डाउट ये चीज तो होनी ही होनी है, लेकिन इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो कि अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो कि ये चीज तो होनी है, हमें ज्यादा ट्रबल ना करे, उसके लिए हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। दिस इज द मेनोपॉज। So Riya is asking from about milk. Should be consumed or not? मेरे अकॉर्डिंग मैं तो अपने क्लाइंट्स को मिल्क देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल A2 मिल्क चल गए हैं, बट मुझे किसी चीज की बाइंग नहीं आती है, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं है, कोई भी चीज A2 नहीं है। मिल्क मैं तो कंज्यूम करवाती हूँ। हाँ, राइट कॉम्बिनेशन क्या है, मिल्क में मैं चीनी नहीं डलवाती, मिल्क में मैं शक्कर डलवाऊंगी अगर लेनी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप उसमें हल्दी और काली मिर्च डाल के देंगे तो मिल्क का कॉम्बिनेशन बेटर रहता है आपकी हेल्थ के लिए। थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन डाल दी जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस, डेफिनेटली लोग PCOD PCOS के केसेस में मिल्क को बंद कर देते हैं, बिकॉज इंजेक्शन वाले इंजेक्शन लगते हैं जब एनिमल्स को, तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैं अपने पेशेंट्स को दे देती हूँ। What about adding जायफल in milk? जायफल डालने से आपके जो है ओवरीज को जैसे कह लो कि स्ट्रेंथनिंग मिलती है। जायफल डालने से उसका मेनोपॉज पीरियड भी जो है वो स्मूथ हो जाएगा, और जो अगर मेंसेस नहीं आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर काम करता है, आपके हार्मोन्स को बेटर करता है। Okay. Somebody has asked for Rajgira laddu also, that it should be given or not? Yes, हम दे सकते हैं राजगिरा लड्डू, बिकॉज उसमें प्रोटीन काफी अच्छे अमाउंट में होता है। इट्स वेरी गुड सोर्स। Dietitian Archana is asking कि what should be given to increase estrogen levels? ये जैसे हमने अभी सेशन में ऑलरेडी बताया है कि एस्ट्रोजन लेवल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप पर दोबारा से इसको बता सकते हैं, व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट कैन बी इनकलकेटेड? एस्ट्रोजन लेवल्स में आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, आप अपने हार्मोन्स को हैप्पी रखिए, अपने आप को खुश रखिए rather than दूसरों को खुश करने के, अपने आप के लिए टाइम निकालिए और देखिए कि आपको कौन सी चीज ठीक लगती है। ओवर थिंकिंग को छोड़िए। सबसे पहले तो मैं ब्रेन पे पे ही जाती हूँ, उसके बाद अपने फूड आइटम्स में आप अपना हेल्दी फूड, हेल्दी फैट, हेल्दी फाइबर, ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। पानी का इंटेक अच्छा है, यानी कि ऑक्सीजन अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली। तो एस्ट्रोजन के लिए कौन से फूड आइटम्स आप रिकमेंड करोगे? आपके पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो एस्ट्रोजन को बूस्ट अप करते हैं। एंड फैट्स में भी आपके एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं स्टोरेज होती है, ब्रेन में भी होती है, तो वो भी रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन लेवल्स rather than योर ओवरीज। आप गुड फैट को भी इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली वो एस्ट्रोजन लेवल गुड होने वाले हैं। आपके एंजाइटी लेवल से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा जब आप इन चीजों को ऐड ऑन करेंगे। ओके, so we have one more query. कितना नटमेग यानी कि कितना जायफल यूज किया जा सकता है? I think so it's a pinch of it can be used, ग्रेट करके आप उसको दूध में दे सकते हैं। दूसरा, Crystal De Silva is asking, can we use brass vessel for cooking? Brass vessels, yes, we can use for cooking. It's very good. काफी अच्छे होते हैं वो, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप वो लोग यूज कर रहे हो पीतल जिसको बोला जाता है, तो वो पीतल यूज करना बहुत ही सही है। मतलब मुझे याद है मेरी दादी का रूम भरा होता था पीतल के बर्तनों के साथ, तो वो लोग ऐसे ही भी हेल्दी थे। रीजन था उसके पीछे उनका लाइफस्टाइल।
So thank you so much, dietitian Navdeen, for giving so much of vast knowledge on menopausal. And obviously, yes, हमारी audience को शायद menopausal के myths break भी हुए होंगे. Along with that, we have discussed about the food combination and we have discussed about the lifestyle changes. So definitely, thank you, big thank you from their side also to you, and thank you for coming today and taking out so much of time from your busy schedule. And I hope many more people come to you and get healed. And yes, getting into this journey is really special because when we heal somebody, it gives a very positive impact even to our body as well. So thank you so much, Dietitian Navdeen, for joining today. And one more thing I want to discuss over here, जो मेरी रह गई थी, that is the chemical exposure, especially your room fresheners and your deos. Mostly आजकल ये ट्रेंड बन गया है, टीनेजर्स का भी देखा जाए तो डिओस बहुत यूज हो रहे हैं एंड आपके रूम फ्रेशनर्स बहुत यूज हो रहे हैं. उसके रादर मुझे लगता है कि आपको फ्रेश चीजों के ऊपर नेचर जितना नेचुरल आप रहेंगे ना, उतना ही आपका जो बॉडी है वो नेचुरली बिहेव करेगा. सिंपल सा फंडा याद रखना, जितना इनडिसिप्लिन करोगे उतना इनडिसिप्लिन आपकी बॉडी रहेगी, जितना अननेचुरल करोगे उतना अननेचुरल तरीके से वो बिहेव करेगी. So ये चीजें दिमाग में जरूर रखना. Thank you so much, Dietitian Navdeen, and thank you everybody. Thank you so much, and we'll definitely come back with the next episode on the very special topic with another expert on panel. And thank you so much for everybody out there to listen to us patiently. And thank you, Dietitian Navdeen, once again for joining us today. And till then, everybody keep your queries ready. We'll definitely come up live coming on the next week, and definitely update you on the next topic that we are going to live on. Thank you so much. Thank you, Navdeen. Thank you so much for joining. Thank you so much.